So yesterday we learned about market structure and supply and demand zone. Okay, uh, we'll talk about that in the end of the session. If you have any doubt regarding to today's market, we'll talk about that in the end of the session. So hold that question. Okay, so before I close the session, just remind me about clearing your doubts. Okay, so yesterday we saw about basics of market structure and supply and demand zone which cause that market structure. So there are two types of structure. One is bullish trend and the second one is the bearish trend. Okay, so bullish trend में क्या होता है कि market हायर हाइज हायर लोस फॉर्म करता है. इन दिस फॉर एन एग्जांपल आज का फिन निफ्टी का चार्ट अगर मैं लूँ, ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी दैट यहाँ पे लो फॉर्म किया है, फिर हाई फॉर्म किया है, देन अगेन एक लो फॉर्म किया. सो दिस इज़ दी higher low. Why I'm calling this as higher low? Because this low is higher than its previous low. Okay, now we have a breakout structure over here. Okay, why I'm calling it as a breakout structure? Because this high broke the previous high and made a new higher high. Okay, now price again came back for a pullback, making a new higher low, higher high, higher low. Okay, so एंड वाइसा वर्सा फॉर अ बेरिश ट्रेंड. इन बेरिश ट्रेंड मार्केट क्या फॉर्म करता है? मार्केट फॉर्म करता है लोअर हाइज एंड लोअर लोस. ऑलराइट, सो इन दैट वी सॉ कि ये सब कौन क्रिएट करता है? सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट करता है. ओके, इन सप्लाई जोन हु आर एक्टिव, so in supply zone the sellers are active. Okay, sellers are dominating whenever a price come back to its previous supply zone जहाँ से original move generate हुआ था. Okay, in demand zone who is more active? The buyers are more active. Okay, why? Because from that point that original move towards the upside actually happened. Okay, for an example अगर मैं लूँ तो from this point we had a breakout structure. Price broke above this high and this was the demand zone right here. Price came back to that demand zone where originally that move happened, and then again the fresh buying started, and then price continued going towards the upside. Okay, today we are going to learn about what is change of character, but before that we will be learning what is strong, weak, high and low. चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज स्ट्रॉन्ग, वीक, हाइज एंड लोस. ओके, सो जब भी हमने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखा था, इट वाज जस्ट अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड. ओके, अभी यहाँ पे ऑन द करंट मार्केट सिनारियो आर वी इन अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन मार्केट या फिर ट्रेंड रिवर्सल मार्केट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. तब तक मैं ड्राइंग ड्रॉ करके रखता हूँ. ओके, सो इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन मार्केट हमें सिर्फ क्या कंसिडर करना है? वी हैव जस्ट नीड टू कंसिडर हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, डिपेंडिंग ऑन कौन से डायरेक्शन में वो ट्रेंड जा रहा है, एंड देन जस्ट वेट फॉर price to come back to its demand zone or to its supply zone. Okay, now you guys tell me why in this scenario, in this uptrend market, why did we broke above this high? Why did we break above this high? हमने ये हाई ब्रेक क्यों किया? लाइक एनीथिंग लाइक कॉम नूब्स जैसा लॉजिक भी लगा सकते हो. व्हाई डिड वी ब्रोक अबाउ दैट हाई एंड व्हाई डिडंट वी ब्रोक बिलो दिस लो? और ये लो क्यों सपोर्ट किया? फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाई डिड वी ब्रोक अबाउट द प्रीवियस हाइज एंड लोज क्यों सपोर्ट किया हमने? डिमांड बाइंग प्रेशर. यस, दैट इज़ दी लॉजिक की डिमांड है तो ऑब्वियसली वो होल्ड करना ही है. ओके, एंड कल हमने क्या देखा कि द पर्पस ऑफ लो इज़ टू मेक अ न्यू हाई. ओके, सो हियर now we will consider this highs as strong high, sorry, weak high, and this lows as strong low. Why? Because first of all this lows
fulfill their purpose of making a new higher high, and this high broke was been bridged. Okay, so ये जो high था वो है हमारा weak high. Now again here, if market sustain this low, so that still that low is the strong low, and from that point we can target this previous high. Why? Because if the history repeats itself, it will target the weak high here. Even though price wants to take a reversal, okay, it needs to take liquidity somewhere, from somewhere at least, right? So वो क्या करेगा कि ये हाई के ऊपर जाएगा, ऊपर से लिक्विडिटी उठाएगा, और यहाँ से अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जाना है तो अपसाइड चला जाएगा, वरना वहाँ से भी रिवर्सल मिल जाएगा हमें. ठीक है, सो एट दिस पॉइंट वी हैव 50-50% चांसेस दैट प्राइस विल आइदर होल्ड दिस डिमांड जोन और it will break that demand zone. Okay, so if price breaks this demand zone, what gets weak? Is the low the weaker one now, or the high the weaker one now? यहाँ पे अगर लो ब्रेक करता है, is that low still a strong low? Yes, no. That low will become the weak low, right? और ये हाई क्या फॉर्म हो जाएगा? ये हाई हो जाएगा the strong high. ओके, ये फिर भी कभी होगा when the trend will continue, जो कि हम उसको बोलते हैं confirmation. That is if we have a change in a trend, or we'll call it a change of character. उसके बाद this is kind of an aggressive trade without taking any confirmation कि the price will continue to go down. Because sometimes क्या होता है कि even though price needs to go up, okay, obviously we need fuel for price to go up. और वो fuel कहाँ से मिल सकता है? Either creating liquidity in between that demand zone, जिसे हम inducement बोलते हैं, okay, or it will grab liquidity from its previous lows. ओके, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कौन सा लो मतलब आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग वीक हाई एंड लो है हमारे पास. ओके, सो हियर वी हैव फर्स्ट अ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं. ओके, शॉर्ट में हम उसे नेम देंगे CHOCH, चोक. Okay, now what is the meaning of choke? Choke is nothing but it's a change in a trend. Basically जो previous trend था हमारा which was bullish, now it has turned to bearish, or also you can say कि the sellers have overpowered the buyers, that's why, and they have took over the demand. Now that demand turns to क्या? Supply zone. Okay, यहाँ से either you can take entry directly from the supply zone, depending कहाँ से आपको favorable risk reward ratio मिलता है, or you can wait for trend continuation, which is break of structure यहाँ पे, that makes the confirmation for us to enter this trade. यहाँ से एक पुल बैक आएगा, वहाँ से आप ट्रेड कंटिन्यू ले सकते हो. नाउ टारगेट कहाँ पे करें? ओके, टारगेट हमें क्या करना है? हमें ये जो प्रीवियस लो जो फॉर्म किया है मार्केट ने, उसको हमने टारगेट करना है. वाई? कैन यू टेल मी द रीज़न वाई हमें वो टारगेट करना है? बिकॉज ऑब्वियसली लाइक द बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो है या फिर सपोर्ट है, जो प्राइस वहाँ से लेके एक बाउंस बैक देगा. बट व्हाट इज़ द रीज़न द प्राइस विल कम बैक देयर? लाइक खींचा चला जाएगा. करेक्ट, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी. प्राइस विल गो एंड हंट डाउन दैट लिक्विडिटी. अंडरस्टैंड दैट लिक्विडिटी गवर्न्स द मार्केट. लिक्विडिटी एक्ट एज अ मैग्नेट टू द मार्केट. ओके, तो जहाँ जहाँ पे आपको लिक्विडिटी प्रेजेंट दिखती है, वहाँ पे मार्केट अट्रैक्ट होते जाएगा. ऑल राइट, सो वंस यू टेक दिस, आइडेंटिफाई दिस शॉर्ट ट्रेड, यू विल टारगेट द लिक्विडिटी. ये हुआ हमारा बेरिश
bullish reversal, which is our bearish change of character. Now we'll look at bullish change of character. In bullish change of character, it is nothing but the vice versa of bearish change of character. Here we'll look for a bullish change of character. That means if price doesn't sustain a supply zone, okay, here what is weak and what is strong, you guys tell me in the chat box. यहाँ पे क्या वीक है और क्या स्ट्रांग है? यहाँ पे कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है? यहाँ पे हाई वीक है? नहीं. ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है? लो के साइड पे हुआ है कि हाई के साइड पे हुआ है? रिमेंबर, अगर हम कोई भी लेवल ब्रेक करते हैं, ब्रीच करते हैं, दैट लेवल इज़ द वीकर लेवल. ओके, सो वो पॉइंट वीक है. हाई के इस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम. एट दिस पॉइंट क्या वीक है और क्या स्ट्रांग है? मैं अभी तक बोला नहीं है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है हमारा, ठीक है? तो अगर ये कंटिन्यूएशन है तो व्हाट इज़ वीक एंड व्हाट इज़ स्ट्रांग? इज़ द हाई द वीक वन और द स्ट्रांग वन? In bearish trend, we make lower highs and lower lows. Okay, that means we are breaking the low, correct? So high is strong and low is weak. It's basically like common sense बोल नहीं सकता, but हाँ थोड़ा बहुत observation आपको strong रखना पड़ेगा, like presence of mind इसमें ज़्यादा चाहिए अपने को. Okay, so here you can see that whenever price tries to give us a pullback, it take a resistance near to its supply zone. Okay, why we are not breaking above that high? Because that high is the strong high. And why we are breaking below that low? Because that low is the weak low. Okay, now here if there is a situation that when let's say we hit a POI is basically a point of contact, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन, कुछ भी बोल सकते हो आप, विच इज़ दी हायर टाइम फ्रेम का. ओके, ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया और डिमांड जोन पे मार्केट आया एंड वहाँ से डायरेक्टली बाइंग प्रेशर शुरू हुआ. ओके, दैट मीन्स पीपल गॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग एट लोअर लेवल्स. जैसे कि अगर आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पता है तो वॉट वी जनरली डू इज़ वी बाय लोअर एंड सेल हायर. यस और नो? सो एक हायर टाइम फ्रेम को समझो POI है प्रेजेंट वहाँ पे एंड प्राइस टुक अ पॉज देयर एंड देन वी हैड दिस इम्पल्स मूव टुवर्ड्स द अपसाइड. नाउ व्हाट इज़ वीक एंड व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग? इज़ द लो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन और द हाई द स्ट्रॉन्गेस्ट वन? And we also have a change of character over here by breaking above this supply zone. That means who is in control now? Buyers or sellers? I'm keeping it as a shortcut as CH. Okay, now who is in control now? Are the sellers in control or the buyers are in control? Buyers are in control, correct? So this supply zones becomes what now? The supply zones becomes our demand zone. So here you can either take entries directly from the demand zone and then target this previous high. Why I'm targeting those previous high? Because those are the area of liquidity. It will act as a magnet for price. Okay, and वैसे वैसे price attract होते जाएगा towards those points. Okay, understood? Clear है ये? Strong, weak, high and low, and what is change of character? Yes, I need a yes from each and every one of you. So we'll see at some examples in today's market itself क्या हुआ करके. Okay, अभी
जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस एटलीस्ट नीड टू टैप सम POI। ओके, POI एज इन एक डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन पे टैप करना चाहिए। ऑलराइट, सो और whenever there will be multiple change of character। अभी तो हम जो ड्राइंग्स ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग कंपेयर टू हाउ द रियल मार्केट विल लुक लाइक। ओके, रियल मार्केट ऐसा नहीं दिखेगा, रियल मार्केट हमेशा चॉपी लगेगा या फिर कुछ समझ में भी नहीं आएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो उधर। ओके, व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, व्हाट इज़ योर विजन, व्हाट इज़ योर व्यू। आर यू आर लुकिंग फॉर बाय ट्रेड्स, और बाय ट्रेड जब भी आप ले रहे हो तो व्हाट आर द फैक्टर्स यू आर लुकिंग फॉर। ओके, सो एवरीथिंग शुड बी अलाइन टू ईच अदर, और you can call it as sync with each other। each and every time frame should be in sync with each other। okay, जैसे कि फ्रैक्टल नेचर बोला था मैंने मार्केट का। ओके, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, सो अभी जैसे कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर बुलिश है तो ऑब्वियसली इट विल मेक सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम जहाँ पे आपको वो एंट्री जनरेट करके देगा। एंड we have a way to identify that by looking for change of character। now change of character की एक बात ये है कि it can give you multiple fake change of character in between the trends। okay, so हमें ये कभी देखना है कि that which we are choosing is the valid change of character by looking at multi time frame analysis। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हो तो वही होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम क्या है हमारा और लोअर टाइम फ्रेम क्या है हमारा। ओके, इफ़ यू आर लुकिंग एट 4 आवर टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम बेरिश है, सॉरी बुलिश है, सो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हम सेल ट्रेड देखेंगे कि बाय ट्रेड देखेंगे? बाय ट्रेड देखेंगे ऑब्वियसली, राइट। सो एंड द सेकंड वन इज सप्लाई डिमांड जोन। ओके, जब तक कोई भी सप्लाई एंड डिमांड जोन पे मार्केट टैप नहीं होता, हम उस पे से उसके अगेंस्ट या ऑपोजिट ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, इफ़ यू आर लकी इनफ अगर एक आधा ट्रेड कैप्चर कर लिया तो ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से मार्केट विल नॉट लेट यू विन बिकॉज यू आर बेसिकली इन दी अनटैप ट्रेड टेरिटरी। ओके, अगर कोई भी एक मिडल से इम्पल्स मूव आता है, फॉर एग्जांपल फिन निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, लेट्स से यू आर लुकिंग एट फिन निफ्टी फ्रॉम हियर एंड एक इम्पल्स मूव आया मार्केट में, ऑलराइट, एंड आपने कहा बीच में से ट्रेड ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्टॉप लॉस विल बी बिलो हियर विच इज़ वेरी हाई। ओके, एंड या एट दिस पॉइंट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नो कि कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कहाँ पे मुझे टारगेट करना है। ओके, वाई? बिकॉज वेन एवर वी लुक फॉर एंट्री वी लुक फॉर अ पुल बैक नियर टू डिमांड जोन। अगर डिमांड जोन पे आया तो मेरा ऑब्वियस टारगेट कहाँ पे होता है? अगर डिमांड जोन पे आता है प्राइस तो वेयर शुड आई टारगेट माई फर्स्ट टारगेट? एट दिस स्विंग हाई, yes or no, at the swing high। so never ever go against your plan because that exact plan will help you to map out the entire market। okay, so जहाँ पे भी आपको अगर चीज़ें ट्विक करने का मन करे या फिर सोचो लेट्स से अरे यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है या फिर यहाँ पे कोई तो अलग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो मैं वो पैटर्न को ट्रेड करके ट्राई करता हूँ बिकॉज आज के दिन मुझे कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं मिला। okay, don't do that। if you are using a certain concept, stick to it, master it, and then you will see the result। आप अगर एक महीना वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते, don't get frustrated। okay, try to analyze your own things कि आप कहाँ कहाँ पे गलत हो। यहाँ पे ही मोस्टली लोग मिस्टेक कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल लर्न समथिंग न्यू, एक दो बार ट्राई करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, एंड देन द सेकेंड डे थर्ड डे अगर समझो कि मार्केट एकदम फुल्ली साइडवेज चला गया और उनके एक्सपीरियंस से बाहर का चीज़ उनको दिखाई दिया, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे विल टेक रॉन्ग ट्रेड्स एंड उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम 50% ऑफ और मोर देन दैट कैपिटल लूज़ कर देंगे एंड देन द साइकिल रिपीट इटसेल्फ, वही फिर सेम मिस्टेक्स दोहराते रहेंगे। ठीक है, सो एटलीस्ट खुद को 1 or 2 months दो to develop that or train yourself to see the market the way we are trying to learn it। okay, I'm giving you the tools, you just need to uh,
learn how to use those tools. Okay. So yeah, where were we? सो या हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हाउ मार्केट कम्स बैक टू इट्स डिमांड जोन और POI, और हाउ दे आर इन सिंक विथ वन अनदर. ओके, सो what was the view of taking this trade? First of all, we are already in the bullish trade, ये हमें पता है, ठीक है. यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ सपोर्ट्स ही है. तो हर सपोर्ट्स पे हमें नोटिस करना है कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है एंड वहाँ से हमें ट्रेड करना है. सो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट बैक टू 4 आवर टाइम फ्रेम. ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिस वाज द लास्ट what red candle. Now what is the definition of red candle or what the red candle act as? हमने अभी तक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ा, बट सिंपल सा लॉजिक इतना हमने अभी डिस्कशन किया है. सो व्हाट दिस रेड कैंडल विल एक्ट एज, एंड एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मार्केट का नेचर फ्रैक्टल है, सो यू also need to have that kind of vision to see the market in that fractal nature. Even though you are looking at 4 hour time frame, you should also be looking at 15-minute time frame, either if you have two screens side by side, or if you don't have two screens side by side, there should be a picture on your mind key. We have a breakout structure above this high. Okay, ये green candle ने उसका हाई ब्रेक किया. ओके, इवन दो 15 मिनट्स पे रिजेक्शन हुआ है हमें, ये ग्रीन कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया. वेयर वॉज द ओरिजिन? कैन आई कंसिडर दिस रेड कैंडल एज द ओरिजिन ऑफ दिस इम्पल्स मूव एंड द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर? येस, नो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. अगर नहीं समझा तो प्लीज़ बोलो कि मुझे नहीं समझा है. कैन आई कंसिडर दैट रेड कैंडल एज माई डिमांड जोन? Yes, yes, because that was the last down candle, that was the last time where price took a pullback. Okay, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ का मैं प्राइस एक्शन शो करता हूँ यहाँ पे, which happened on 15-minute टाइम फ्रेम एंड लोअर. सो ये इम्पल्स मूव है, बराबर. मतलब जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हो रहा है वो 15-minute टाइम फ्रेम पे भी हो रहा है. येस और नो? ओके, बट 15-minute टाइम फ्रेम पे थोड़ी ऐसा कैंडल दिखेगा. तो 15-minute टाइम फ्रेम पे देयर आर मल्टीपल कैंडल्स. यस, सो प्राइसेस आर मेकिंग व्हाट? प्राइसेस आर मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस. एम आई राइट और रॉन्ग? यस, एम आई राइट? सो दिस हाई एंड दिस हाई वाज द लास्ट हाई, और ये रेड कैंडल रिप्रेजेंट करता है पुल बैक को. ओके, प्राइस केम फॉर अ पुल बैक, and also this rejection represent the pullback. Why? Because it rejected from the highest point. Okay, and then we at on Monday the market closed. On the next day we opened gap up above this high right here. Okay, now we have a demand zone which is what? Strong or weak low? फटाफट tell me low in the chat box. Strong or weak low? S और W पे बात कर सकते हैं आप. ये लो स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है, करें. एंड वी नो दैट इफ़ अ स्ट्रॉन्ग लो इज सस्टेन, तो आप टारगेट उसके प्रीवियस वीक हाई को कर सकते हो. ठीक है. एंड क्या हुआ? सुबह प्राइस केम अप बैक हियर, रिजेक्टेड एंड देन केम डाउन इनसाइड आवर डिमांड जोन. ओके, अभी ये फ्रैक्टल प्राइस को हम देखते हैं यहाँ पे. दिस इज़ माई 4 आवर डिमांड जोन. ओके, नाउ जो 15-minute का डिमांड जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा या फिर 4 आवर का डिमांड जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. कौन सा डिमांड जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और कौन किस में हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो डिमांड जोन होल्ड करेगा? 4 आवर्स का, करेक्ट. लेट्स गो टू 15-minute टाइम फ्रेम. सॉरी, आई एक्चुअली डिडंट टुक दैट ट्रेड ऑन 15-minute बट 5-minute. ओके, अभी 5-minute पे टू आइडेंटिफाई रिवर्सल मुझे ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 15 मिनट्स पे कौन सा डिमांड जोन है या ऑल दोस थिंग्स. ओके, नाउ ऑल आई हैव टू लुक फॉर इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर. कैन यू सी एनी साइन ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर ओवर हियर? और मैं ड्रॉ करता हूँ, जस्ट लेट मी नो
इज़ दैट चेंज ऑफ कैरेक्टर अ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर और नॉट। अगर आपका जवाब यस है तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, अगर वो मैच करता है तो करेक्ट है, अगर नो है तो भी उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऑलराइट, अगर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा और चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हमारा, इज इट अ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, येस और नो? Yes, okay. Now I will tell you why. First of all, you can see that we have consecutive red candles. Okay, जैसे जो सेम लॉजिक हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे यूज़ किया, वो सेम लॉजिक हम यूज़ करेंगे ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट का नेचर फ्रैक्टल है। ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम को मैं अगर सेकेंड्स टाइम फ्रेम या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो वो कैसे दिखेगा मुझे? लेट्स से ये रेड कैंडल्स को रिप्रेजेंट करता है बाय price moving lower highs and lower lows, price taking a pause here, again consolidate kiya, and then this move represent this red candles, okay? And achanak se we move above this high which was this candle right here, and then we have a change of character. So here what we can assume that first of all we have a higher time frame ka demand zone, price came inside the demand zone, there were already buying pressure present in the market. Now the 5 minute time frame and the 4 hour time frame are in sync with one another, yes, no, or no? Okay, they are sync with one another, right? Now we have a change of character over here. Okay, either you can take that trade directly after a break of that structure. okay, यहाँ से वो जो सप्लाई जोन था हमारा ग्रीन कैंडल का, दैट विल बी योर एंट्री, योर स्टॉप लॉस विल बी below this low, or wait for one more break confirmation, that is a continuation pattern. अभी हम क्या देखते हैं कि price is in a trend because whenever there is a continuation of a pattern which is prices are making higher highs or higher lows. Okay, here you can clearly see that we are making higher highs and higher lows, and market is respecting its previous demand zone. All right, we took this trade at this breakout structure, this was the breakout structure, and entry, the stop loss was just below that. Now compared to this 60-point stop loss, we have just 20 to 15 point stop loss. And where should be your next target? Where should be your next target? As in, where should be your first target? What do we call that level as? The day high or the week high? Here you should always take your partial. ओके, अगर जब भी आप अपना फर्स्ट टारगेट डिसाइड करते हो या फिर आप अपना फर्स्ट एग्जिट ये करते हो, आइदर वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, एग्जिट कर दो, या फिर टेक पार्शल्स। ओके, प्रॉफिट हमेशा बुक करना है हमें, बिकॉज लेट्स से इसने पूरा दिन ले लिया, एटलीस्ट 2:15 तक मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, एंड उसके बाद वी हैव दैट इम्पल्स मूव, एंड आपने यहाँ पे बुक नहीं किया प्रॉफिट्स और उसके बाद सीधा मार्केट नीचे आ गया, जस्ट लाइक दिस। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी यू आर लॉन्ग हियर एंड देन प्राइस वेंट अबाउ हियर एंड आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और वो वापस वो नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आइदर इट विल रिस्पेक्ट दैट डिमांड जोन और नॉट, वो हमें नहीं पता। सो बेटर है कि वो पार्शल को बुक करो। लेट्स से यू हैव बॉट 2 लॉट्स, यहाँ पे आपने 1 लॉट बाय किया, जो सेकेंड लॉट का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेल करना है। सो फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहता है वो हमेशा अपने कॉस्ट के हिसाब से रखना है। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैंने ये ट्रेड एट 42 रुपीज़ में बाय किया है, ठीक है, तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एट दिस पॉइंट विल बी 42 रुपीज़। ओके, नाउ हियर व्हाट वी हैव, अभी एट दिस पॉइंट वी डोंट हैव एनी लिक्विडिटी, एरिया ऑफ लिक्विडिटी और POI जहाँ से हम इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, वाई? बिकॉज देर इज़ नथिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, देर इज़ नॉट
सो एट दिस पॉइंट ना ही हमारे पास कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, ना ही हम कोई लिक्विडिटी पॉइंट पे है, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट तो दूर की बात आती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे देर इज़ नो पीओआई, nothing. So this is the point where we have to decide ki are we supposed to take this short trade or not after this change of character. What do you think? Is there a reason to take this short trade? I mean, yes, if you are a scalper, you can use this opportunity like as a quick scalp by trading this imbalance first, which is here, or यूजिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक एज योर एंट्री। बट मैं क्यों नहीं लूँगा? वॉट इज़ द रीज़न? आपको क्या लगता है? लाइक ब्रेन स्टॉर्म करो कि वाई डू वी थिंक दैट दिस ट्रेड, लाइक शॉर्ट ट्रेड, मैं अगर लेता भी हूँ, लाइक मैं उसको कंफर्टेबली होल्ड नहीं कर पाऊँगा। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन रिवर्स लाइक दिस। ऐसा क्यों? बिकॉज मार्केट नॉट गेटिंग लिक्विडिटी? नहीं, यस करेक्ट, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम इज बुलिश। ओके, हम अभी तक बुलिश है ऑन हायर टाइम फ्रेम। सो हम, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था, ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव अ ट्रैक ऑफ योर हायर टाइम फ्रेम। ये जो 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम्स है, ये सिर्फ हमारे एंट्रीज के लिए है और नथिंग एल्स। ओके, ये सिर्फ हम एंट्रीज के लिए रहेंगे। इससे हम ना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, बट चेंज इन अ ट्रेंड, लाइक जो एक्चुअल ट्रेंड है उसे हम 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। इसे हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, सो अनटिल एंड अनलेस ये जो डिमांड जोन प्राइस अगर ब्रेक नहीं करता, विच इज़ लेट्स से 20,261, अगर हम इसके नीचे नहीं आते, तब तक मैं कोई शॉर्ट ट्रेड कंफर्टेबली नहीं लेना चाहूँगा। अंडरस्टूड? एंड उसके बाद अगर मैं शॉर्ट ट्रेड लेता हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक, कैन वी कम बैक टू 19,550 के आसपास जो लेवल है वो? यस, नो, एंड वाई? ये जो लेवल है, व्हाई डू यू थिंक दैट वी कैन टारगेट दैट लेवल? यहाँ पे हम काउंटर ट्रेंड ले सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ आवर स्ट्रॉन्ग लो। अगर पे प्रीवियस बैक टेस्ट भी करते हो तो एवरी स्ट्रॉन्ग लो वॉज रिस्पेक्टेड। ओके, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे होगा मार्केट, पर ठीक है। हमें क्या देखना है कि बेसिकली वेन एवर प्राइस इज क्लोज टू दैट ए जोन और एरिया, वी हैव टू गो एंड लुक एट दी लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी देखो, ये जो 4 आवर का जो रेड कैंडल था, उसमें प्राइस आया एंड इट बाउंस्ड बैक। ओके, यहाँ पे भी प्राइस केम बैक टू दैट डिमांड जोन एंड एक हार्ड पुश बैक दिया टुवर्ड्स द अपसाइड। ओके, ऑल यू नीड टू डू इज़ लुक फॉर दैट वन सिंगल कैंडल। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही करना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में मैं थोड़ा और डिटेल में दिखाऊंगा इसे, बट यहाँ पे भी आपको कुछ मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ दैट ग्रीन कैंडल ब्रेकिंग अबाउट दैट प्रीवियस रेड कैंडल और नॉट? इफ़ इट इज़, दैट इज़ योर डिमांड जोन। अगर सेलिंग साइड पे हो तो a red candle should break that green candle, but the overall trend should be that way. ओके, अगर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है और सॉरी बुलिश है और आप बेरिश मतलब सप्लाई जोन देख रहे हो, दैट वोंट हेल्प। ओके, अनटिल अनलेस वो बुलिश जोन से बाउंस कर रहा है, तो आप हमेशा बुलिश ट्रेंड में ही रहोगे। अनटिल अनलेस यू डोंट सी एनी चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑन हायर टाइम फ्रेम, आप कोई काउंटर ट्रेंड नहीं लोगे। ओके, इज इट क्लियर? सो ये मैंने पीपीटी अपलोड कर दिया है ऐप पे, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से देख सकते हो, एंड यू विल ऑल्सो गेट द रिकॉर्डिंग फ्रॉम दैट ऐप इटसेल्फ। सो मेक श्योर यू रजिस्टर ऑन द कू ऐप।
what should be the time frame for now? If you are looking for just higher time frame, go with डेली एंड 4 आवर टाइम फ्रेम. अगर आपको डेली एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे चीज़ें प्रॉपर नहीं दिख रही है तो आप मंथली एंड वीकली का भी यूज़ कर सकते हो. ओके एक ट्रेड था ABRL करके, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने इसको स्पॉट किया था. सेकेंड ये डिमांड जोन था, आई गेस लिक्विडिटी स्वीप ऑफ या वीकली जोन. एंड what we have here, we have a higher time frame change of character. Okay, we have swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, and then here we have a change of character. Okay, as I told you, if you are looking just for change of character, वो थोड़ा क्या होता है, risky हो जाता है to take that trade. Okay, so always look for a break of structure if we are planning to trade this change of character, especially on higher time frame. Okay, so what we have here, after a change of character we have got break of structure. यहाँ पे हमें break of structure मिला. प्राइस ने कहाँ से break of structure दिया था? फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन, एंड उधर से कंसोलिडेट किया. एज यू कैन सी, जैसे कि मैंने बताया था, इफ प्राइस नीड्स लिक्विडिटी इट विल क्रिएट लिक्विडिटी. Okay, so this is that inducement. Price tapped into that inducement, tapped the order block, and then went above, the buying resumed from there. Okay, now यहाँ पे it was a daily time frame, correct? That's why naming things are important. Okay, now on a daily time frame here, if I'm holding this trade, so what I am supposed to do? First of all, this red candle is going to be your stop loss or going to be your trailing stop loss. First of all, market ने कुछ ज़्यादा impulse move नहीं दिया, it is still inside a range. अगर ये high break करता है तो ये रेड कैंडल, लेट्स से कल एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है इसके ऊपर, तो दैट रेड कैंडल विल बी माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. ऑलराइट, इसके ऊपर हम और भी डिटेल में बात करेंगे, बट ऊपर से मैं चीज़ें बता रहा हूँ फ़िलहाल के लिए. ओके, नाउ कल का तो असाइनमेंट्स के साथ आज जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमने देखा उसको ऐड अप करके आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हुआ तो ठीक, और ऑल्सो कुछ फॉरेक्स चार्ट्स आपको जो भी पसंद लगे पेयर्स आप उस पर ट्राई कर सकते हो, एंड इवन विद फ्यू स्टॉक्स. ओके, शाल वी यू बी टेलिंग बी ओबी, नहीं आज ओबी के बारे में नहीं पढ़ेंगे. ओबी के बारे में हम कल नहीं थर्सडे के सेशन में पढ़ेंगे. पहले ये चीज़ें मास्टर कर लो, how to start to identify market structure and then change of character. Any doubts regarding to this? Anything, छोटे से छोटा doubts भी चलेगा. Nothing, all clear. एंड यह जो मैंने टेलीग्राम जो डिस्कशन ग्रुप बनाया है वहाँ पे आप अपना चार्ट्स पोस्ट कर सकते हो. ओके, टू सेंड दो चार्ट, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में कम्प्लीटली न्यू हो तो आज का ट्रेड ब्रेकडाउन तो सिर्फ मैंने बैंक निफ्टी फिन निफ्टी पे किया, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया. ओके, फिन निफ्टी का था वो, विच वॉज दिस 4 आवर के डिमांड जोन पे आया था. मैं हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन ऐसे मार्क करता हूँ विद जस्ट वन सिंगल लाइन. ये था ऑर्डर ब्लॉक मेरा 4 आवर का. देन वेंट टू 5 मिनट टाइम फ्रेम. 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑल आई हैव टू लुक फॉर इज change of character. Okay, this could have been a liquidity sweep and then market coming down, so that's why मैं 4 आवर को कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहूँगा until and unless ये लो ब्रेक नहीं करता, मैं शॉर्ट ट्रेड नहीं इनिशिएट करूँगा. प्राइस होल्ड दैट लेवल एंड देन वी हैड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड फॉलोड बाय अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, when
asking boss change of character, we are considering candle closing. Yes, candle closing is much important. Actually, whenever you are looking for a breakout structure and change of cat, closing is not important, but the how market reacted in while breaking from that levels. Okay, is it an impulse move or is it like consolidation and then prices are going up? Okay, we need an explosive move. Okay, why, when does market creates those explosive move? When there are huge amount of orders, yes or no? And that's how we decide key institutional participation present है वहाँ पे, correct? So we need those impulse move whenever we are considering breakout structure or also change of character. यहाँ पे मैंने ये breakout structure क्यों consider किया? Because we had a gap up, okay? And when there is a gap up, that means there is buying इंटरेस्ट इन द मार्केट. इफ अगर गैप अप होके ये लेवल सस्टेन नहीं करता, नॉट ऑल्सो गिविंग चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लेवल जैसा ब्रेक होके ही मैं शॉर्ट ट्रेड ले लेता. बिकॉज इफ प्राइस is breaking a higher time frame POI, it will not give you that much pullback. Okay, because momentum बहुत strong रहता है. If you want to break a higher time frame का POI, you need that amount of orders also, right? बिकॉज वो POI फॉर्म होने को ही बहुत टाइम लगा था, वो POI फॉर्म होने को ही बहुत ऑर्डर्स लगे थे एक साथ. एज इन कंपेयर टू ये हमने जो 4 आवर का जोन मार्क किया है, यू कैन सी दैट अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन विच हैपेंड ओवर हियर, लाइक फ्रॉम 10 to 10:55 टू एंड ऑफ द डे तक कंसोलिडेशन हुआ. मतलब कितने सारे ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हुए थे. एज सिमिलर टू हियर ऑल्सो यू कैन सी कितना कंसोलिडेशन हुआ था. एंड सेकेंड डे प्राइस ने ये इम्पल्स मूव दिया था टुवर्ड्स द अपसाइड. सो मार्केट को पढ़ना सीखो. ओके, पैटर्न्स वगैरह आइडेंटिफाई मत करना सीखो. अभी यहाँ पे व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज ओवरऑल, इफ़ यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर 15 मिनट्स पे, ये कंसोलिडेशन है. यस, ये कंसोलिडेशन है. वी ब्रोक अबाउट दिस हाई. ओके, और जैसे कि ये हाई ब्रेक किया है, आई थिंक सो वी आर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज राइट नाउ. ये मेरा व्यू है. मार्केट लिटरली अपोजिट भी कर सकता है. ऑब्वियस दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ व्यू. मार्केट एक साइकिल में चलता है. ओके, व्हेनेवर इट इज़ ट्रेंडिंग डाउन, इट विल अक्यूमुलेट. ओके, कंसोलिडेशन होगा एंड देन इट विल मार्क अप. ओके, एंड व्हेनेवर द मार्केट इज ट्रेडिंग अप, वहाँ पे अपसाइड कंसोलिडेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद, एंड देन इट विल मार्क डाउन एंड डिस्ट्रीब्यूट. ओके, सो ये मुझे लगता है इट इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ओके, वंस वी गॉट अ कन्फर्मेशन कि ये ब्रेक हो जाए या फिर एक कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव के साथ हमें एक मूव मिल जाए, तो वी कैन ईजिली कंसिडर टेकिंग दैट बाय ट्रेड. आई गेस निफ्टी पे मैंने 1-2 एग्जाम्पल जब एक्सप्लेन कर रहा था तभी मार्क किए थे. लेट मी सी. या जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी हियर कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे. दिस इज़ निफ्टी फ्यूचर चार्ट. वो कंसोलिडेशन का मार्केट ने ब्रेक दिया है टुवर्ड्स द डाउन साइड. ओके, दैट इज़ बेसिकली मैनिपुलेशन और द लिक्विडिटी ग्रैब बोल सकते हो आप उसे. एंड फिर उसका ब्रेकआउट हुआ विच इज़ ऑल्सो द रीअक्यूमुलेशन. एंड उसके बाद यू कैन सी कितना प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया है. ओके, सो ये आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्वियसली मार्केट शुड कम एंड tap inside the higher time frame POI. Okay, that accumulation and distribution की जो बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं उसे एक छोटे टाइम फ्रेम पे इमेजिन करूँ तो आपको कैसे दिखेगा वो. If I draw accumulation and distribution, that's just an example. Wait. ओके, अभी ये पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ये क्या बन रहा है? व्हाट इज दिस?
सी समटाइम्स आई प्रेफर दैट जो ऑप्शन चार्ट फॉलो करता है ना, उसको आप ले सकते हो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि स्पॉट चार्ट एकदम कंप्लीट डिफरेंट प्राइस एक्शन दिखाता है एंड देन फ्यूचर चार्ट एकदम कंप्लीट डिफरेंट प्राइस एक्शन दिखाता है. फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, ये वाला ट्रेड सेटअप था आई गेस. हाँ ये वाला, एंड फ्यूचर्स देखने तो मेरे को एक बार तो मुझे समझ में आएगा. या दिस वन and this one, look at the price action. Okay, so here there is no higher highs and higher lows. yes, बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, बट बैंक निफ्टी पे फ्यूचर्स में it was making higher highs and higher lows. okay, and when we took that trade, यहाँ पे प्राइस सॉरी ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट था विच इज़ 44,600 का, इट वॉज फॉलोइंग द सेम मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, सो उसको थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा आपको कि आप पहली बात तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा यूज़ कर रहे हो. आर यू ट्रेडिंग आउट ऑफ द मनी वाला, विच आई क्लियरली नॉट रिकमेंड. इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द मनी, तो देखो कि इन द मनी कौन से चार्ट को फॉलो कर रहा है, स्पॉट चार्ट को फॉलो कर रहा है कि फ्यूचर चार्ट को फॉलो कर रहा है. It's basically that. And don't put that much pressure on this thing कि कौन सा चार्ट हमें फॉलो करना चाहिए. all you have to do is try to understand कि what market is trying to do. okay, is it going for, ये सब लिक्विडिटी का खेल है. देखिए आप कोई भी चार्ट देखो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको पता ही नहीं है कि प्राइस क्या हंट करने जा रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी हंट करने जा रहा है कि सेल साइड लिक्विडिटी हंट करने जा रहा है, तब तक तो आप कोई भी चार्ट पे ड्रॉ करके देखो, आपको वो भी नहीं समझेगा. ओके, सो या दैट्स द थिंग. एनीथिंग एल्स? इसमें भी आप देख सकते हो कि वी हैव अ कंसोलिडेशन, प्राइस वेंट अप अबाउट दिस हाई, अगेन वी ब्रोक बिलो दैट. अगर एक कल लेट्स से कंसोलिडेशन या फिर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलता है, बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो कंफर्म हो जाएगा कि वी आर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज. वो अभी वेडनेसडे का दिन डिसाइड करके देगा हमें. ओके, cool then, we'll wrap up today's session and see you on Thursday. तब तक के लिए प्रैक्टिस करो. कुछ डाउट्स रहेंगे तो टेलीग्राम itself पे पूछ सकते हो आप, एंड वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या गलत है क्या सही है. ओके, एंड टू सेंड योर चार्ट्स ऑल यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल Alt+S लिंक कॉपी हो जाएगा और वो लिंक आप पेस्ट कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, या फिर आपको कोई शॉर्टकट्स ढूंढना है, just click on this camera icon at right hand corner पे टॉप पे, वहाँ पे इधर देख सकते हो. आई हैव अ 1-to-1 सेशन, सो उनके साथ स्केड्यूल है, सो आई विल कंप्लीट दैट वन, दैट्स व्हाई. So we don't have session tomorrow. Yes, we will having session on Thursday, same time, 7 to 8. Okay, so I am stopping the recording and see you tomorrow. Bye bye, take care and good night.